عید میلاد النبی فیسٹیول آف لائٹس، روشنی کا تہوار. مولانا شبیر صاحب، ہم صحیح معنی میں کیا ہے یہ بھول گئے. ہاں، لائٹ بہت لگانا ہے اتنا یاد رہ گیا، ایک دیوالی کو اور عید میلاد النبی. مگر جو کچھ بھی ہے لوگ جڑتے ہیں وہی بڑی بات. اور جہاں 100 200 500 جڑ کر کے اگر 5-10 بار پڑھتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہے، پیسہ وصول. آج کا حال تو وہ ہے. ایک اس طرف جہاں جماعت کے صدر متولیان بیٹھنے کی جگہ تھی، شاید پروگرام لمبا چلا تو انہیں جانا پڑا، ضروری کام بھی ہوتے ہیں. مگر آپ میں سے کوئی چھوٹے چھوٹے پیغام پہنچا دیجیے. آج کے حالات ایک بہت ہی الگ قسم کا نیریٹو چلا رہی ہے سرکار، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جتنا برا بھلا مسلمان کو کہتے ہیں اتنا ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اور ہم ایسے جگہ پہ جا کے پھنس رہے ہیں ان کی باتوں میں یا ان کی باتوں میں. اب ان کی باتیں اور ان کے باتوں کا جو فرق ہے اس میں ہم شکار بن کر کے اپنے آپ کو سرنڈر دیں. ہم نے اپنی خود کی آئیڈینٹی کھو دی. ہم صحیح کیا ہے بتانا نہیں چاہتے کہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ بتانا نہیں آتا ہے ہم نہیں جانتے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو غیر قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکبر بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں یہی حال ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے. اس کو ہم نے کوشش نہیں کی سمجھانے کی، جبکہ آقا نے فرمایا تھا کہ جاؤ دعوت کرو. آپ کا پہلا فرض وہی ہے، انوائٹ دیم، برنگ دیم، میک دیم فٹ اینڈ ٹیچ دیم اینڈ شو دیم. مطلب انہیں بلائیے، دکھائیے، سکھائیے اور سمجھائیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. وہ ہم سب بھول گئے. ہم خود خطبے کے بعد، بیان کے بعد باہر کھڑے رہتے آخری سگریٹ کے 2 لاسٹ کے کیا کہتے ہیں اس کو، کش، لاسٹ کے 2 کش لے کے پھر جلدی میں وضو کرنے جاتے ہیں. آپ بھی وضو والے کو تھوڑا نیلا دیتے ہیں، ایک ادھر ہاتھ ایک ادھر ہاتھ. یہ اسٹائل ہے، کش کے وضو کرتا ہے. کیا مسلمان ماشاء اللہ. مگر ایک حسارت، ایک مذاق کا ہم سبجیکٹ بنتے ہیں دنیا میں. یہ ہماری غلطی ہے. ان کو فائدہ لینے آتا ہے. ہم نے کسی کا نقصان نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ مفتی عبدالعزیز صاحب آج پچھلے 50-60 سال سے ایک ہی کرتے آ رہے ہیں. اچھائی کی طرف لے جانے کی لوگوں کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوئی غیروں سے دشمنی نہیں ہے، نہ تو ان کے مذہب سے دشمنی ہے، نہ ہم ان کے ہیں نہ وہ ہمارے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ان کا مذہب ہم نہیں فالو کر سکتے، ہمارا مذہب وہ فالو نہیں کر سکتے. اتنی بات پہ ہم اگریڈ ہیں، اور یہ بات چھوڑ کے دوسری بات ہم کرنے کو تیار ہیں. کل میں نے یہی کہا، کرناٹک چوک پہ جہاں بات ہوئی تو ہم نے یہی کہا کہ مدرسوں کے بارے میں جو باتیں چلی ہے ہم انہیں دعوت دے کے بلاتے کیوں نہیں کہ بھائی آئیے، یہ مدرسہ ہے، رہیے 2-3 دن ہمارے گھر پہ، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھیے ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، کیا حالات کیا ہے اور ان کی کیا ضرورت ہے. انہیں یہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ضرورت ہے کہ ہم پہ فرض ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے جماعت کے ساتھ، امام صاحب کے پیچھے لوگوں سے کندھا لگا کر کے. تو نماز پڑھانے والے پڑھانے والے بھی تو ہمیں چاہیے. بیلگام شہر میں چاہے 200 مساجد ہے، بانگی صاحب کی ضرورت ہے، امام صاحب کی ضرورت ہے، ایکسٹرا ایک اسٹینڈ بائی بھی چاہیے، تو قریب 600 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. اور یہ جتنے بھی یہاں بیٹھے
इमाम तैयारी कर रहे हैं ताकि वो आके हमें हमारे ईमान पे मजहब पे लेके चले। इतनी बात हम नहीं समझा पा रहे, इतनी सी छोटी सी बात हम वो कौम को नहीं समझा पा रहे जिनके साथ में हम पिछले 2000 साल से रह रहे हैं। हम 2000 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ में पड़ोसते रहे हैं, मगर ये बात हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हम कि भाई ये हम कर रहे हैं, आप आके देखिए, आप आके देखिए तो सही, और फिर आप जाके अगर हम गलत है तो बता दीजिए कि हम गलत हैं, मगर हम अगर सही है तो उनको जाके समझाइए आपके भाइयों को कि वो भी आके देखें और हमें हम पे छोटे इल्जाम ना लगाएं, हमारे बच्चों को खौफ में ना रखें। उनकी तरक्की जरूरी है, उनका सीखना पढ़ना आराम से रहना बड़े होना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी कौम के जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो अपने आप को जमातों के बड़े कहते हैं और जिनको हम मानते भी हैं, जो मौलवी है, जो मुतवली है, जो उनकी बॉडी है, जो यंग कमेटी है, आपको एक ही मकसद रखना है अब हिंदुस्तान में कि ये आप साबित करने का काम आपका है कि आप और हम सही हैं, कि वो गलत थे, गलत फहमी में थे, सही तो ये है, आप आइए देखिए, उसका अखराजात जो भी होगा कुछ होता नहीं है। मेहमान नवाजी में मुसलमान कभी पीछे हटा नहीं है, सबसे ज़्यादा सकत वाला मुसलमान ही है, चाहे ऑर्डनरी बच्चा हो या बड़ा हो, ये हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं। तो फिर क्यों पीछे? क्या हम मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब की बात नहीं मान रहे? क्या अगर वो पहल करते तो हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं? क्या अगर वो लोगों को मिलाने की और घरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या उनके घर के ऊपर हमने पथराव किया है क्या? मुझे याद है, लोग भूल गए होंगे, शायद वही एरिया के लोग भूल गए होंगे, मुझे याद है कि हमने ये किया था, हमने ये गलती की थी, अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। किसी को बुरा लगता है, दो चार लोगों को कुछ खिला पिला के या पत्थर मार के बोल देता है, पूरे नगर शहर का अमन और हमारे बड़ों की इज्जत वो कम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामयाब हो जाता है। हमारे में डिवीजन डालता है, हमारे में फूट पैदा करता है, और सबसे ज्यादा मानने वाले, जानने वाले, लड़ने वाले हम हैं, लेकिन अकीदा हमारा कहीं डगमगाया है। हम जो मानते हैं उसको मान के चलते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। अगर दूसरा कुछ कहता है तो झगड़ते हैं, झगड़ा भी पूरा नहीं करते, उसको भी सिर्फ छेड़छाड़ के छोड़ देते हैं, बाकी घर में जाके छूट जाते हैं, ना ये सही काम है हमारा, ना वो सही काम है। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? क्या करना है? ये जो तरफ मेरी बेटियां बैठी है, आज मैं देख रहा हूँ ये MBA, MSc, MA, LLB सब हो रहा है यहाँ पे। इस तरफ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ 9th फेल, 10th पास, 10th फेल, PUC फेल, यही चला है। ऐसी होनहार बच्चियों को ऐसों के साथ निकाह नहीं करना है। कल का ये आपका कोई बड़ा प्रॉब्लम 5 साल के बाद में आगे खड़ा होगा। आप अपने बेटों को पढ़ाइए, या तो फिर सिक्की बड़ी बहुओं की उम्मीद मत कीजिए। ये मसला आने वाले दिनों में आप देखें। आज बोले क्या क्या बात करता है, क्या कहाँ से ढूंढ के काटता है? तो आइए, अब हर इंस्टीट्यूशन में जहाँ जा रहे हैं, आज एनी के एग्जाम्स में हमारे नंबर तो आते ही नहीं, हम वो नहीं दे पा रहे हैं हमारे बच्चों को। मौलाना सलीम साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजी क्या थी सरकार द्वारा, मस्जिदों में क्या क्या काम चलता था। आज के मुतवल्ली कहते मस्जिद में किताब पढ़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? और हिस्ट्री पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। बाहर मस्जिद में कैसे रह सकता है? हॉस्टल है, हॉस्टल में नहीं रह सकता। ये पहले आप करीब दाता मस्जिद में स्टूडेंट रहा करते थे 2 साल, बराबर है ना? आज वहाँ स्टूडेंट्स नहीं रहते। तब लॉ के और आर्ट्स के ग्रेजुएशन के बच्चे वहाँ रहा करते थे। मुझे याद है मरहूम नूरुद्दीन शेख साहब वहाँ जाया करते थे हमेशा, वो बच्चों को मिला करते थे, उनका हाल पूछा करते थे। उतना ही काफी था बाहर से आके पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि भाई हमारा कोई देखने वाला इधर है। वो कभी पैसे नहीं मांगे बेचारे बच्चों को, जरूरत नहीं थी, शायद अच्छे घर के थे, खाते
साथ में है, आप पढ़ते रहो, बाकी सब हम संभालेंगे। संभालने के लिए कुछ रहता ही नहीं, वो अपने आप पार पड़ जाते हैं, जान करके कि हम उनके पीछे और उनके साथ में हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं? आलिमों के सामने शराबी, कबाबी, नशे वाले, पैसे वालों के पीछे हम उनकी खुशामद कर रहे हैं। इमाम साहब खड़े हैं तो कुर्सी उनको दे रहे हैं, बैठिए साहब, चाय पियो, तो बिस्किट भी डुबा के खाओ पड़ा उसमें। हाँ, क्यों? अरे वो ईद मिलाद को 2 लाख लाइट देता है, लाइट की तो बड़ा आदमी है, लाइट बड़े बड़े पोस्टर भी लगाता है। आप आलिम हुए तो क्या हुआ? काम है तो रकत पढ़वाइए, थोड़ा बच्चों का वक्त तक ले लीजिए और फिर जाइए। यही पे आया सवाल कौम में। और जब तक हम और आप, हम भी शामिल हैं, जब तक हम और आप अब ब्रेक लगा करके थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, नहीं सोचते कि आगे क्या करना है। हमारे मोहल्लों में डॉक्टर्स की, सर्जन्स की लाइन अगर हमको लगानी है तो हमें उनको पढ़ाना है, पढ़ने का मौका देना है, पढ़ने की जगह देना है, पढ़ने का माहौल देना है और उसको एनकरेज भी करना है कि भाई अच्छा काम है, आप करो करो। ये नहीं कहना कि अभी पढ़ लिख के कौन बड़ा हुआ है, कौन बड़ा किया है, 9वीं 10वीं पास कर, गाड़ी लेना है, कल केले ही बेचना है तुझे, इतनी बात चली आ। ये बात जब तक हम नहीं रोकते तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप ग्राफ अगर देखेंगे तो डॉक्टर जिया हाफिज 25-40 साल पुराने डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर अभी आने में ही हैं। उनके वालिद के और उनके दादा की खिदमत का अभी तक हम शुक्रिया अदा नहीं कर सके हैं। मुफ्ती साहब आप तो उनके पड़ोसी रह चुके हैं, आप 50-60-70 साल से देख चुके होंगे। हम इतने गए गुजरे हो गए कि ऐसी बड़ी हस्तियों को, ऐसे खानदान के लोगों को जिनके रग रग में खिदमत का जज्बा है, जो विरासत में खिदमत लेके आए हैं, उनकी भी हम गुलपोशी नहीं करते। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कौम को बहुत संभाला है, कभी पैसों के लिए नहीं किया, दवा भी दी और साथ में दुआ भी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2-4 डॉक्टर अभी और तैयार हो जाएंगे कि भाई ऐसे काम में इज्जत मिलती है, बड़पन मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। जब रिकग्नाइज नहीं करते तो हीरो कहाँ से मिलेंगे आप, और मिलना बंद हो जाएगा। मैं राजू शेख साहब का, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी पूरी टीम का, चाहे उनके सेक्रेटरी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेंबर्स हो, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, इनका सबका बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके उनके लीडरशिप का, कि आपने अच्छे काम में कभी किसी को ना नहीं कहा, अच्छे काम करने के लिए किसी की दावत का इंतजार भी नहीं किया। आपने कभी गुलपोशी मांगी, ना कभी शौक करने का आपको शौक रहा। आपने अपने ही जेब में हाथ डाल करके जो कर सकते थे वो किया, बाजू की जेब में हाथ डालने की कोई कोशिश नहीं। जो अल्लाह वाले थे वो दे गए, देने वाले दिए, लेने वाले लेके चले गए। बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है। एक आपको बात बताता हूँ, मैं बेलगाम शहर में कौन नहीं जानता कि रमजान के महीने में पूरा फिरोजा सजता है, दरबार नदी सजती है। लोगों की तिजारत में एक साल भर की कमाई एक महीने में हमारे भाई और बहनों के बच्चे कमा के ले जाते हैं, छोटा साइड में लगा करके। वो कमाई इसके 10-20 लाख रुपया मेरा छोटा भाई खर्चा करता है पूरी लाइटिंग करके, कि बाहर गांव से लोग आए और रमजान यात्रा करके, गैर के भी लोग आके वहाँ खा करके व्यापार करके जाते। तो 10-20 लाख रुपया खर्चा करके जेब का अगर 10-20 करोड़ रुपया मेरे भाई कमाते हैं तो बड़ा फायदे का काम है। ये हम सोच के उन्हें इजाज़त देते हैं और वो करते रहते, पूछते कि नहीं इजाज़त के इंतजार भी करते हैं। अब ऐसे लोगों की तारीफ तो करना ही पड़ेगा, अगर कोई दूसरा नहीं करता तो मुझे आज मजबूरन करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं बेलगाम से। अल-फलाह जो गफूर साहब चलाते हैं, उनकी सदारत में चलती है, बीमारियों की तंजीम है, एक सोसाइटी है जो गरीब बच्चों के एजुकेशन में, फर्दर एजुकेशन में काम करते रहते हैं। और कितने पास हो गए, कितनों को स्कॉलरशिप मिले, कितने को एडमिशन मिले, ये
यहाँ जो बच्चे बाड़ी कुंदरी के मदरसे के, मुफ्ती मंजूर साहब के मदरसे के, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अब्बा के ज़माने से हमारे नज़र में उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है। और उनकी इज्जत की बरकत भी हमारे घरों में है, उनकी दुआओं की बरकत। तो ये लोगों की तारीफ करना किसी को कम दिखाना नहीं है, ये लोगों की तारीफ करके दूसरों को सिखाना है कि आप भी कर सकते हो, आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इंसान करता ज्यादा है तो 10 इंसान, 10 लोग, 20 लोग मिल करके तो बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे अफसोस होता है कि बेलगाम जिले में हमारा कोई सर्जन डॉक्टर नहीं है ऑपरेशन करने वाला, हार्ट हो, किडनी हो। इतनी बड़ी बस्ती है हमारी, इतने समझदार लोग हैं, इतने आला वाले लोग हैं, इतने सखावत के लोग हैं, इतनी होनहार बच्चियाँ आज पढ़ने की कोशिश में है। लड़के होते हैं, ठीक है, मस्ती करते हैं, हमने भी मस्ती की, हम भी कॉलेज करते थे, हम भी मस्ती करते थे। ऐसे नहीं कि हम ऐसे पैदा हो गए समझ वालों के साथ, अपने अपने वक्त पे जो होता है करते आए हैं। लेकिन हमारे बड़े हमको लगाम रख के बराबर ट्रैक्टर लेके चलते थे, थोड़ी बहुत मस्ती भी करने देते हैं। अब आप अगर छोड़ देंगे कि भाई ठीक है तुमको जो चल रहा है, चलो रात को 2 बजे घर आना है, 2 बजे आओ, 12 बजे आना है, 12 बजे आओ। मस्जिद के मुतवली साहब है, देख रहे हैं, सबको हाथ लगा रहे हैं, अभी क्या करूँ होगा, वो अब्दुल रहमान का बेटा है, अब्दुल रहमान मेरा दोस्त है, बोलूँगा तो बुरा मान लेगा, नहीं बोलूँगा तो बिगड़ जाएगा। ये सोचते सोचते 10 साल निकल जाते हैं, फिर मुतवली के पीछे लोग पड़ जाते हैं, आपने हिसाब नहीं दिया मस्जिद का, बेचारा हिसाब दिखाई नहीं है तो क्या करेगा, अल्लाह के नाम पे काम कर रहा है। तो ये सभी बातें एक इतना बड़ा बोझ कम्युनिटी पे हो गया है, हमने खुद बनाया हुआ, दूसरों ने नहीं ढोया है हमारे सर पे। काम करता रहेगा तो कमाएगा, खाली बैठ गया तो घर को खा लेगा, आपने घर गिरवी रख देगा, घर बेच देगा, माँ बाप के गहने चोरी करेगा, वो भी बेच देगा। तो ये मामूली प्रॉब्लम नहीं है हमारा प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमारे जितने मस्जिद के जिम्मेदार हैं अच्छा काम निभा रहे हैं, मगर 2 कदम आगे और जब जरूरत है तो 2 कदम पीछे। मैं बात कर रहा था मौलाना करीम साहब से कुछ दिनों पहले, साथ इतने बड़े बड़े करामत हुए। मूसा अलैहिस्सलाम तो दरिया को ही खुला कर दिए थे ऐसे अपने फॉलोअर्स को फॉलो करने के लिए, तो सहाबा को इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अब उलमा है, हमारे में हक भी है, उन्होंने बोला आपकी समझ थोड़ी कम है, वो हम जैसे लोगों को बेवकूफों को सिखाने के लिए वो दर उठाए खुद जान बुझ के, नहीं तो उनके लिए तो सिर्फ इशारा काफी था। वो मक्का से मदीना रोज 15-15 रुपये आया जाना कर सकते थे, चलने की कोई जरूरत थी नहीं, छुपने की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, फना करना तो ऐसे ही फना कर दे सकते थे किसी को, मगर हमें भी तो सिखाना था। आज 1700 का 1690 क्या हिजरी है, 1490 करीब 1500 साल, फिर भी हम ऊंचाई पे जा करके फिर जवाब पे आ गए। हमारी कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, 1500 साल की अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप जानना चाहिए कि कोई मुगल बादशाह आके इस्लाम फैलाया नहीं है। यहाँ पे तो इनके जैसे लोग आके सूफीज़्म है, बयान करने वाले हैं, तब्लीग करने वाले हैं, सीधा सही रास्ता दिखाने वाले हैं, भाईचारा दिखाने वाले हैं, प्यार दिखाने वाले हैं, अमन शांति समझाने वाले लोग, इन्होंने इस्लाम फैलाया है। ये भी हम जवाब दे नहीं सकते। वो बाबर कहते तो हम बार बार कहते हैं, आजाम जरूरत नहीं है। कौन है? तब तो राजा बादशाह हर एक का लूट मार वाला ही था, और कौन था? जितने बादशाह हुए हैं इंक्लूडिंग जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए, सब लूट मार के लिए आए थे ना, तो उनका काम भी होता
जहाँ आके हमारे महान बच्चे पढ़े और हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक बार इसके ऊपर एक वर्कशॉप हो, डायलॉग हो, लेक्चर हो कि ये सदी में ये हुआ था, ये ट्रू हिस्ट्री है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे, और ये जानने का इंतज़ाम, बताने का इंतज़ाम भी आपके और हमारे ही ज़िम्मे है। तो भाइयों, कभी कभी इतना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इतना हम गुस्से में और दुख में बह जाते हैं कि हम गुस्से में है, क्या रंजिश है, क्या नाराज है, क्या दुखी है, कि किसी को मारना है, क्या खुद रोना है, ये जब समझ में नहीं आता है और मिक्स हो जाते हैं आपसे, तो फिर एक ही रास्ता होता है देखने का। वो मेरा काबे शरीफ के ताबे से बात है। अब इनके ऊपर बोझ पूरा हम डालने की कोशिश करते हैं, सवाल भी इनसे, जवाब भी इनसे ही मांगते हैं। इनकी लिमिटेशंस है, मगर जितना हो सके उतना यहाँ तक तो हमें लाए। अब उनके साथ में बैठ करके हमें क्या करना है, अपनों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने खुद के आखिरत के लिए, अपने मजहब के नाम के लिए। कोई मजाल है किसी की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हर उनका सारे लोगों का पोस्टर लगा के सर पे बिठाए? ऐसे थे क्या मुसलमान 1400 साल पहले? क्या ऐसे थे उलमा जाके उनकी दावत में तो शामिल होते थे? इस हद तक गिर गए हैं। किस लिए? 500 रुपये मिलेंगे करके या 5 दिन का खाना मिलेगा? हमें जरूरत नहीं, हम भूखे मरने को तैयार हैं। हम आपके लिए मरने को तैयार है, आपको साथ में लेकर के सबके लिए मरने के लिए भी हम ले जाएंगे आपको। ये हमारी ताकत है और हमें यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे। मगर छोटी बातों में ये जो चिल्लर लोग हैं, इनकी पीछा छोड़ करके अच्छे लोग बहुत हैं कौम में, इनके साथ बैठने की आदत डाली है। क्या होटल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, साइड में चटाई बिछा के बैठो तो भी आपके दिमाग में और आपकी शान में थोड़ी इजाफा होगा। हमें बचपन में इजाजत नहीं थी, बचपन का मतलब कॉलेज खत्म होने तक ना राजू सेठ को ना मुझे होटल में जाके चाय पीने की इजाजत नहीं थी सर। हम गलती से कभी चोरी से जाते थे, हम ये तो नटखट थे थोड़े, तो जाके छुप के चाय पिए तो हम घर पहुंचने से पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी। तब टेलीफोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ आपका बेटा सुवर्ण मंदिर में चाय पी रहा था और अमोड़े आगे आगे खा रहा था, बहुत बड़ा बुरा माना जाता है। अभी अब छोड़ो, क्या बात करें, अब ये हाल है, अब सुधारना है सभी भाई। आपने तो ठेका ले रखा है एक्टिविस्ट का, हाँ, अशरफ भाई तो बाशीबान से जागरण करने से बाशीबान। अब अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, अच्छे लोग शायद थक गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका वक्त आया है। थोड़ा बच्चों को, ये सब आपके भतीजे हैं, सब आपके भांजे हैं, कान पकड़ने का आपको हक है। अगर प्यार करना आपका फर्ज है तो कान पकड़ना आपको हक है, और आज आपको खुला बोल रहे हैं। अगर प्यार नहीं करते तो आपको हक नहीं है, अगर प्यार करते हो तो आपको हक है कि उनका कान पकड़ के उनको सीधा कीजिए, उनके माँ बाप के सामने खड़ा कीजिए, उनके माँ बाप को भी समझाइए कि गलियों में हमारे बच्चे रात को 9 साढ़े 9 के बाद में न आए, पुलिस आके माँ बहन की गाली दे दे के लाठी का आवाज करके वड़क होगी करके आपके सामने हो रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। गालियाँ तो उनके माँ को दे रहे हैं ना, वो अच्छी तरह से नहीं बोल रहे हैं। तो ये अब चेंज करने का वक्त आया है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इंशाअल्लाह ये साल हज कर लेंगे कि ईद मिलादुन नबी या रसूलुल्लाह, इनसे वादा करके कि अगले साल के अंदर हम में बदलाव दिखेगा, मोहल्लों में बदलाव दिखेगा, मस्जिदों के मैनेजमेंट में बदलाव, इंसानों का बदलाव नहीं, सोच का बदलाव दिखेगा। और जैसे मौलाना सलीम साहब ने इशारे दिखाए, मस्जिद नबवी, हाँ, वैसे मस्जिदें हम कायम करने की है, वो मस्जिदों को भी कायम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप राजू शेख साहब और बाबूलाल और समीउल्लाह साहब कोशिश कर रहे थे कि नूरानी मस्जिद में कुछ ऐसा ही कुछ हो, मालूम नहीं कहाँ पे उनको लगा था, लेकिन आप सीनियर्स बैठ के
मसला मसाइल वाले बैठ के डिसाइड कीजिए कि अगर ये सही है तो हुक्म कीजिए उनको, उनके साथ हम सब हैं। वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह।